अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज तलबा व तालिबात, फिर दोबारा आप तमाम का डिजिटल क्लासेस में खैर मकदूम किया जाता है और हुकूमत तेलंगाना और ख़ासकर कमिश्नर साहब जनाब सैयद उमर जलील साहब का मशकूर हूँ। इन्होंने अपनी जुस्तजू और लगन से उर्दू मीडियम की क्लासेस का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। चलिए चैप्टर की शुरुआत करता हूँ। अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा निहायत और मेहरबान और रहम करने वाला है। कल हमने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के सवालात को हल किया था, उसी सवालात की और एक दूसरी कड़ी आज पार्ट 6 हम शुरू करते हैं। हाँ, लिखिए सवाल लिखिए। ये 4 मार्क्स का सवाल है। 4 मार्क्स में भी पूछ सकता है या 7 मार्क्स में पूछ सकता है। अगर अगर A is to B is to C is equal to 7 is to 8 is to 9. A is to B is to C is equal to 7 is to 8 is to 9. तब cos A is to cos B is to cos C ये कदर मालूम करो। ठीक है, क्या दे दिया? जिलों की निस्बत दे दिया है। A is to B is to C दे दिया है। क्या है? 7 is to 8 is to 9 और हमको इनके जावियों का कोसाइन मालूम करना है, यानी cos A is to cos B is to cos C, राइट? सॉल्यूशन हल दिया गया है। A is to B is to C is equal to 7 is to 8 is to 9, राइट? फर्ज करो कि A by 7 is equal to B by 8 is equal to C by 9 is equal to K. K क्या है? कोई कांस्टेंट है, राइट? A by 7 equal to B by 8 is equal to C by 9 is equal to K. So इसका मतलब होता this implies that A is equal to 7K, B is equal to 8K और C is equal to 9. ठीक है, इसको A is equal to 7K, B equal to 8K, C equal to 9. अब मुझे क्या मालूम करना है? cos A is to cos B is to cos C मालूम करना है। Therefore cos A, cos A बोलते हैं आपके दिमाग में आ जाएगा कोसाइन का ज़ाब्ता। कोसाइन का ज़ाब्ता आप पढ़ चुके हैं, राइट? व्हाट इज cos A? B square plus C square minus A square divided by 2BC, राइट? अब ऊपर के ज़ाब्ते दर्ज कर रहा हूँ। B के अंदर क्या है? 8 का स्क्वायर क्या होगा? 64 K square plus C square 81 K square minus A square 49 K square divided by 2 into BC 8K into 9, right? 4 plus 1 5, 8 plus 6 14, 145 K square minus 49 K square divided by 2 into 8 into 9 into K square as it is, right? Now 15 minus 9 is equal to 6, right? यहाँ क्या बचा? 13 minus 4 is 9 into K square divided by 2 into 8 into 9 K square, right? 12 8 are 96 K square cancel, 8 1 are 8 12 are cancel, so this is equal to 8 2 are 16, 16 6 are 96, so 6 divided by 9 K square चलेगा। Again it is divisible by 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, so this is the value of cos A. ठीक है? Now similarly find the value of cos B. What is cos B? A square plus C square minus B square divided by 2AC is equal to A. What is A? 7K. 7K क्या होता? 49 K square plus C square. What is C? 81 K square minus what is B?
8 64 k square divided by 2 into a into c 9. ठीक है, 2 into a into c 2ac. Now 9 plus 1 is equal to 10, carry 1, 8 plus 4 12 plus 1 30, 130 k square minus 64 k square divided by 2 into 7 into 9 into k square, right? Now 10 minus 4 is equal to 6. यहाँ क्या बचा 12, 12 minus 6 is equal to 6, 66 k square divided by 2 into 7 into 9 into k square. Now k square cancel, 3 2s are 6, 3 2s are 6 divided by 3 से this cancel, 2 into 7 into 3, right? 3 3s are 9, 3 20 to 66, k square cancel again, 2 1s are 2 11s are, so this is nothing but 11 by 7 3s are 21. So this is the value of cos b, right? Now I have to find the value of cos c also. Now cos c, what is cos c? A square plus b square minus c square divided by 2ab is equal to a. What is a? 7k, that is 49k square plus b square 64k square minus c square 81k square divided by 2 into a. What is a? 7k into b. What is b? 8k. Okay. Now is equal to, now 9 plus 4 13, carry 1, 6 plus 4 11, 113k square divided by 81k square by 2 into 7 into 8k square is equal to 3 minus 1 is equal to 2, 11 minus 8 is equal to 3, 32k square divided by 2 into 7 into 8 into k square. K square cancel from the numerator and denominator. 8 2s are 16, 16 2s are 32, so this is nothing but 2 by 7. ठीक है, 16 2s are 32, 8 2s are 16, 16 1s are 16. So what is this? Cos c. So we got the value for cos a, cos b, cos c. So we want the value in terms of ratio. हमको cos a, cos b, cos c की कीमत निस्बत में चाहिए. Therefore cos a is to cos b is to cos c is equal to, what is cos a? 2 by 3. What is cos b? 11 by 21. What is cos c? 2 by 7. Now अब देखिए, इसको इक्वलाइज करना पड़ता. यहाँ पर क्या है? 21 है, यहाँ क्या है? 3 है, यहाँ क्या है? 7 है. तो सबको 21 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? इसको 21 बनाना तो क्या करना? 7 से मल्टीप्लाई करना, 7 से मल्टीप्लाई भी करना, 7 से डिवाइड भी करना. इसको 21 बनाना तो क्या करना? 3 से मल्टीप्लाई करना, 3 से डिवाइड करना, तभी जाके डिनोमिनेटर क्या होता है? सबके इक्वल होता है, राइट? सो आई एम डूइंग द सेम थिंग. सो दिस इज इक्वल टू मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग बाय 7. This is nothing but 14 by 21. This 21 is already there, so keep it as it is. To make this as 21, multiply and divide by 3. 3 2s are 6 by 21. Now you see the denominator is same, so I can cancel the denominator throughout. So this gives me 14 is to 11 is to 6. Therefore, my conclusion is cos A is to cos B is to cos C is equal to 14 is to 11 is to 6. So this is my answer. Is it clear? आ गया समझ में? चलो जल्दी लिखिए इसको, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ. लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्या करें? क्या दिया था? A is to B is to C की निस्बत दिया था, 7 is to 8 is to 9 बोला था. मालूम क्या करना था? उनके कोसाइन की जावियों की निस्बत मालूम करना था. दैट इज cos A is to cos B is to cos C मालूम करना था, राइट? क्या करें? देखो दिया गया है A is to B is to C is equal to 7 is to 8 is to 9 लिख लिए. फर्ज करो इसको क्या करे, कोई स्केलर क्वांटिटी से इक्वलाइज करे. दैट इज A by 7 is equal to B by 8 is equal to C by 9 is equal to K, or A is equal to 7K, B equal to 8K, C equal to 9K. हो गया?
तो हमारे पास ए बी सी की कदर क्या आ गई, 7 की आ गई, 8 की आ गई और 9 की आ गई, राइट। नाउ देन अब मेरा मकसद क्या है, cos A is to cos B is to cos C की कदर मालूम करना है। therefore cos A का ज़ाब्ता इस्तेमाल करो। क्या है cos A का ज़ाब्ता, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc, राइट। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, 8k, 8k क्या होगा 64k स्क्वायर, c 9k इज इक्वल टू 81k स्क्वायर माइनस a 7k, 7 इज इक्वल टू 14k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 into 8k into 9k, राइट। सो दोनों को ऐड कर तो क्या आया 145k स्क्वायर आया माइनस 49k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 into 8 into 9 into k स्क्वायर। इसको नीचे वाला क्यों भाई एज इट इज रखा, मल्टीप्लाई नहीं करा, इसलिए नहीं करा कि मेरे को किसी भी हाल उसको कैंसिल करना है, ठीक है। therefore 145 minus 49 is equal to 96k square divided by 2 into 8 into 9k square. Now you see that from both numerator and denominator k square will be cancelled, चला गया। Similarly 8 2 जा 16, ऊपर 96 है, 16 1 जा 16 6 जा 96, therefore ऊपर क्या 96 कैंसिल क्या हो गया, क्या आता 6 आता, बाई नीचे क्या बच रहा 9, 6 by 9, इसको 3 से डिवाइड होता 3 2 जा 6 3 3 जा 9, तो cos की खतर क्या आ गई 2/3। नाउ we have to calculate, we have to find the value of cos b also and cos a. Cos b, what is cos b, a square plus c square minus b square divided by 2ac। आपको याद है फॉर्मूला में याद करने का तरीका समझाया था, मुझे b होना है तो क्या करना, बचे हुए एलिमेंट लिख देना, बचे हुए सेट्स लिख देगी, a और c बचा हुआ होगा, ये b क्या करना नीचे माइनस करना डिवाइडेड बाय दोनों का हासिल जरा 2ac, okay। now substitute the same values, so I got the value as 11/21। similarly cos c using the same formula, that is a square plus b square minus c square by 2ab, so simplify करो तो आंसर क्या आ गया था 2/7 आया। so here my answer is not calculated, मेरे को क्या करना है cos a cos b cos c मालूम करना नहीं है, बल्कि क्या करना है cos a is to cos b is to cos c की निस्बत मालूम करना है। so निस्बत मालूम करने के लिए क्या करना, देखो भाई cos a is to cos b is to cos c is equal to cos a की कदर क्या थी 2/3 थी, 2/3, cos b की कदर क्या थी 11/21, 11/21, cos a की कदर क्या थी 2/7, ठीक है। अब ये तीनों कदरें लिख दिया, लेकिन देखे तो क्या है कोई अच्छी कदर नजर नहीं आ रही, कोई इक्वलाइज नजर नहीं है, होमोजेनियस नहीं है, टिपिकल ऊपर एक नीचे एक अलग अलग है। तो इसको इक्वलाइज बनाने के लिए हम क्या करें, नीचे का देखिए, नीचे का सब में बड़ा हाईएस्ट टर्म क्या है, हाईएस्ट टर्म क्या था, नीचे का सब में बड़ा 21 था, तो अगर मैं सबको 21 बनाया तो डिनोमिनेटर कैंसिल होकर क्या होगा, ऊपर का न्यूमरेटर क्या होगा, सब इक्वलाइज हो जाता, न्यूमरेटर इक्वल बनता, राइट। सो आई एम मेकिंग द डिनोमिनेटर इक्वलाइज, सो इसको 21 बनाना है तो क्या करना पड़ता, 7 से ज़रब और 7 से तकसीम करना होता, तो 7 से ज़रब दिया 7 2 14, 7 3 21, ये 11 में 21 जैसा का था, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 21 ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको 21 बनाना है तो कैसे ज़रब देना पड़ता, 3 से ज़रब देना पड़ता, तो 3 से ज़रब दिए, 3 7 21, 3 2 6। अब देखिए 21 21 21 डिनोमिनेटर सब में सेम होगा, राइट। सो दिस डिनोमिनेटर विल कैंसिल ईच अदर, तो क्या बचेगा, व्हाट इज द रिमेनिंग पार्ट, 14 is to 11 is to 6, 14 is to 11 is to 6, therefore cos a is to cos b is to cos c is equal to 14 is to 11 is to 6, right। चलिए लिख लीजिए जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स में पूछ सकता हूँ या 7 मार्क्स में पूछ सकता हूँ, और आप इससे पहले एक नहीं कई दफा समझा चुका हूँ क्लास, डिजिटल क्लास का तरीका क्या होता, बोर्ड पे भी देखना, लिखना भी, समझना भी, एक ही वक्त में 3 काम करना है, खाली आप देख लेते बैठे तक, फिर मैं इरेज कर देता हूँ, फिर आपका नहीं रहता, फिर रिमाइंड करते रहना पड़ता, टाइम खराब होता, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बताओ कि cos a by a plus cos b by b plus cos c by c, cos a by a plus cos b by b plus cos c by c is equal to a square plus b square plus c square divided by 2abc, ठीक है। क्या बोला मैंने, प्रूव दैट
cos capital A by small a, cos capital B by small b, cos capital C by small c, right? Now LHS is equal to क्या है? cos capital A by small a plus cos capital B by small b, cos capital C by small c. आपको याद होगा कोसाइन का जब्ता आप पढ़ चुके हैं, राइट? व्हाट इज द फार्मूला cos है? b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc, ये जैसा का वैसा, प्लस व्हाट इज cos b? a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac, b जैसा का वैसा. व्हाट इज cos c? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाय 2ab into c will remain as it is. Now you see what is the denominator? 2abc is the denominator. So take out the common as 2abc. तो ऊपर क्या बचता? b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू, नाउ माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कैंसल, प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कैंसल, माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कैंसल. सो व्हाट इज द रिमेनिंग पार्ट? क्या बचा है पर? b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2abc. सो व्हिच इज माय आंसर. ठीक है, ये मेरा आंसर. दूसरा सवाल लिखो बेटा. क्या है? देखो सवाल क्या है, बताओ कि b प्लस सी इंटू कॉस b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू a इंटू कॉस b माइनस सी बाई 2. ठीक है. अब तक आप ये देखे थे लेफ्ट हैंड साइड रह के हम राइट हैंड साइड प्रूफ कर रहे थे, राइट? या बाजू में होता क्या था, राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करते थे. लेकिन यहाँ पर क्या है, जो सवाल दिया, सवाल को हम थोड़ा सा क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करेंगे. एडजस्टमेंट कर लेके अपने लिए जैसा आसानी होगी वैसा लाके उसको प्रूफ करेंगे. अब मेरे को एक्चुअली क्या है, ये प्रूफ करना है. इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, हल दिया गया है. क्या दिया? b प्लस सी इंटू कॉस b प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू कॉस b माइनस सी. ये दे दिया सवाल. अब मैं इसको थोड़ा क्या करूँ, एडजस्ट भी करूँ, ऐसा लिख रहा हूँ. सो दिस कैन बी रिटन एज b प्लस सी डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू कॉस ऑफ b माइनस सी बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ b प्लस सी. लिख सकते हैं ऐसा, ये b प्लस सी जैसा का वैसा a को नीचे ढकल दिए इज इक्वल टू cos b माइनस c बाय 2 b प्लस में इसको नीचे ढकल दिए cos b प्लस c बाय 2. अब आपका ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड होगा, राइट? नाउ आई एम टेकिंग LHS b प्लस c डिवाइडेड बाय a. ठीक है, इज इक्वल टू, नाउ अगेन अब यहाँ b प्लस c बाय a देखते हैं आपके दिमाग में आना कि यहाँ पे हमको साइन रूल इस्तेमाल करना है और सामने आंसर करने है पूरा इन टर्म्स ऑफ कॉस में, है ना? तो यहाँ पर हम लेफ्ट पे क्या करेंगे, साइन रूल का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे. सो व्हाट इज v? 2r sin b. व्हाट इज c? 2r sin c डिवाइडेड बाय 2r into a equal to 2r sin. Okay, now this is equal to, if I take out 2r common, अंदर क्या रहा था, sin b plus sin c divided by 2r sin. ठीक है, इज इक्वल टू क्या करना है, देखो 2r into sin b plus sin c divided by 2r sin a. So this can be written as is equal to 2r जैसा का वैसा. अब यहाँ पर भाई sin b plus sin c यानी sin c plus sin d का फॉर्मूला है. ठीक है, sin c plus sin d का फॉर्मूला क्या था, 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2. तो मैं वो ज़ाब्ता इस्तेमाल कर रहा हूँ, sin c plus sin d का ज़ाब्ता 2 sin c plus d by 2 cos
c minus g by 2 divided by 2r into sin a. ये 2r cancel. ठीक है. So what is in the numerator? 2 sin b plus c by 2 into cos b minus c by 2 divided by sin a. sin a बोलते आपके दिमाग में आना कि यहाँ पे sin a का ज़ाब्ता बोलते क्या साइन रूल इस्तेमाल करना है? नहीं, ऐसा ज़ाब्ता इस्तेमाल करना ताकि ऊपर के कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाए. तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा हूँ, सम मल्टीपल का ज़ाब्ता इस्तेमाल करूँ. आप मल्टीपल सम मल्टीपल में ज़ाब्ता पढ़े थे, क्या थे? sin 2a इक्वल टू sin 2a इक्वल टू 2 sin a कौन से पढ़े थे? या ये क्या होगा? sin a इक्वल टू 2 sin a इक्वल टू इंटू cos a. ठीक है. तो यहाँ पर ये sin a की प्लेस पर मैं वो इस्तेमाल करना है ज़ाब्ता मेरे को, 2 sin a इक्वल टू cos a इक्वल टू. सो ये नथिंग बट 2 sin a इक्वल टू इंटू cos a इक्वल टू. ठीक है. चलो अब देखो क्या होगा. 2 कैंसल, 2 कैंसल. नाउ व्हाट इज रिमेन? sin b plus c by 2 into cos b minus c by 2 divided by sin a by 2 cos a. अब देखो मेरे को आंसर क्या प्रूव करना था? cos b minus c by 2. cos b minus c by 2 आ गया ऊपर, नीचे क्या आना है? cos b plus c by 2 आना है, यानी b plus c by 2. तो अब यहाँ क्या करेंगे हम? आपको जहां से चैप्टर दे दिया उन्हें प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, मुसल्लस एबीसी में हर सवाल में लिखा हुआ रहता, अंडरस्टूड है. अगर कोई सवाल में लिखा हुआ भी नहीं है तो आपको समझना है कि कोई मुसल्लस एबीसी में है. कोई मुसल्लस एबीसी का मतलब होता है नीट ट्राइंगल एबीसी. नीट ट्राइंगल एबीसी का मतलब होता a plus b plus c is equal to 180 degree, right? Therefore a plus b plus c is equal to 180 degree, right? अब मेरे को यहाँ से a by 2 की कदर होना है, right? a by 2 कदर निकालना है. a by 2 is equal to 90 minus b plus c by 2, right? अब यह क्या था? sin a by 2 था. sin a by 2 बोलते हैं, साइन अप्लाई कर रहा हूँ. sin a by 2 is equal to sin of 90 minus b plus c by 2. What is sin 90 minus theta? sin 90 minus theta is equal to cos theta. तो इसका मतलब ये हुआ sin a by 2 फिर क्या आ गई? cos b plus c by 2 आ गई. इसी तरह मेरे को cos a by 2 की भी कदर होना है, क्योंकि अभी मेरे पास आंसर में cos a by 2 नहीं है, तो मुझे cos a by 2 निकाल के फेंकने का है. सो अगेन here यहाँ पे मैं साइन अप्लाई किया था ना, now here I can apply cos also. So cos a by 2 is equal to cos of 90 minus b plus c by 2. Now cos 90 minus theta is nothing but sin theta. तो इसका मतलब ये होगा sin a by 2 प्लस पे ये दर्ज कर सकते हैं, cos a by 2 प्लस पे ये दर्ज कर सकते हैं. So this implies that sin b plus c by 2 cos b minus c by 2 divided by what is sin a by 2? Cos b plus c by 2 into what is cos a by 2? Sin of b plus c by 2. ये sin b plus c by 2 ऊपर से, sin b plus c by 2 नीचे से, दोनों cancel each other. Now what is the remaining part? Cos of b minus c by 2 divided by cos of b plus c by 2. चीज में हर चीज यही रखो, cos b minus c by 2 divided by cos b plus c by 2. है समझे? तो ऐसे और दो सवाल है, उन दो सवालों को भी क्या करना है, इसी तरह यहाँ पे जो साइड्स रहेंगे, साइड्स को एक जगह कर लेना है, कर लेके एंगल्स को एक तरफ करना है, करके यहाँ पर साइन रूल का ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है. ठीक है, देखिए इसको आपकी क्लासेस इंशाल्लाह ये पेपर 1 है और पेपर 1B की क्लासेस इंशाल्लाह डेली लाइव टेलीकास्ट होंगे. इंशाल्लाह टी-सेट चैनल पे आएंगे या फिर दूरदर्शन पर आएंगे. रोज का रोज देखते रहिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए. कुछ डाउट है तो आप फिर मेरे से जूम पे बात कर सकते हैं, जूम पे फोन करिए,
आपको क्लैरिफाई करेंगे डाउट्स। ठीक है, जब तक आप खुदा हाफिज, गो एंड प्रैक्टिस, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।